Commencing in the holy name of Almighty Allah, the merciful and the beneficent. Good morning to all of you dear students. Today we will start new chapter which is physical optics. In this chapter we will study the first three topics in our today lecture, which is about nature of light, then wave front, and then we will study about Huygens principle. So let's start. What do you mean by physical optics, or what do you mean by optics? Optics is the study of light. A simple word we can say that the study of light is called optics. Optics is divided into two main branches, which are geometrical optics and the second branch of optics is physical optics. Now, in geometrical optics, we study about rays, laws of reflection, laws of refraction, etc., etc. Laws of reflection and laws of refraction. Dear student, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में हम रे डायग्राम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आता है. नाउ व्हाट अबाउट फिजिकल ऑप्टिक्स? फिजिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन and polarization. तो ये प्रॉपर्टीज, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में हम फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हमारा चैप्टर फिजिकल ऑप्टिक्स के हम इसमें वो टॉपिक पढ़ेंगे जो फिजिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है. तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट और ऑप्टिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह आता है. फिजिकल ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसको हम स्किप करते हैं. Now we will study these things in this physical optics chapter. So in this chapter our first topic is about nature of light. Optics is the study of light. What about the nature of light? What is light? How can we define light? In simple word, we can define light as a form of wave which produces the sense of vision. What is light? Light is a form of wave which produces the sense of vision. So that the wavelength of visible light is how much? Its wavelength ranges from 400 nanometer to 700 nanometer. That will be the wavelength of visible light. When light falls on an object, it reflects back and produces the sensation of vision in our eyes. So in simple word we can define lights. तो dear student, light के बारे में हमारे पास बहुत सारे theories आई थी. पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इसाक न्यूटन ने बयान किया था 1642 to 1727 तक. इसाक न्यूटन stated that light acts as a stream of particle.
theories about light, particle nature, Isaac Newton 1642 to 1727. तो ये थ्योरी जो लाइट की थी, अकॉर्डिंग टू दिस Isaac Newton, which was a scientist, he said that light is a stream of particle. तो इसी ड्यूरेशन में फ्रॉम 1642 टू 1627 जो न्यूटन का ड्यूरेशन कहा जाता है, इसमें लाइट को इधर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कहा जा सकता है। तो इसी ही ड्यूरेशन में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, क्रिश्चियन हाइगन। वेव नेचर ऑफ लाइट को क्रिश्चियन हाइगन ने एक्सप्लेन किया था। Huygens explained the wave nature of light in the same era, 1629 to 1727. 1629, 17, almost 27. If you look these two, this is about same duration in same era. Christian Huygens explained that the nature of light is in the form of wave. Light can travel in the form of wave. So light wave is a wave. और फिर मैक्सवेल ने एक इक्वेशन डिराइव की, C equal to 1 divided by under the root mu naught epsilon naught. This mu naught is the constant of magnetic field and this epsilon naught is the constant of electric field. So इससे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास है 10⁸ मीटर पर सेकंड। So it means that light behaves like a wave, क्योंकि लाइट की वेव नेचर होती है। Furthermore, different साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था, लेकिन अभी जो रिसेंटली लाइट के बारे में कंसेप्ट है, लाइट हैव डुअल नेचर। Sometimes it behaves as a wave, as light reflect, it can reflect, it can also diffract. So reflection, refraction and diffraction, these are the these are the properties of what? These are the properties of wave. Similarly, in photoelectric effect, when light fall on the surface, it emits electron. मीन लाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकते हैं किसी सर्फेस से। और क्वांटम इफेक्ट में हम कह सकते हैं कि लाइट की मोमेंटम भी हो सकती है, तो इसकी मोमेंटम भी है और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दिस इज द व्हाट ऑल अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? The concept about dual nature of light was the most important development about the light was the work of Maxwell. In 1873, he showed that the light is a form of high frequency electromagnetic waves. The electric and magnetic field oscillate and these waves are produced. So dual nature of light is a wave. लाइट के साथ एक प्रॉपर्टीज है, इट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ सरफेस, it can also reflect when it enter from one surface to another surface where it bend from its original position. Light can also diffract. So all these three are the characteristics of wave. So light
is a wave. Now, according to if we want to explain particle nature, in particle nature there are two things which must be explained: photoelectric effect and Compton effect. Photoelectric effect जब एक मेटल सरफेस पे हाई फ्रीक्वेंसी लाइट स्ट्राइक कर रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, दिस फिनोमेना इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सिमिलरली कॉम्पटन इफेक्ट के इसकी मोमेंटम भी होती है. सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है. सो दीज टू explain the particle nature of light. So therefore we can say that light, the nature of light is dual. Sometimes it acts as a particle and sometimes it acts as a wave. Now what do we mean by wavefront? Our second topic is about wavefront. Wavefront is the locus of all the points in a plane which have the same phase of vibration, a surface on which all the points have same phase of vibration is known as wavefront. Let me define it. What is wavefront? A surface in which all the points have same phase of vibration. Is called wavefront. A surface on which all the points have same phase of vibration is called wavefront. अब definition तो हमने लिखी. What does it mean? मिसाल के तौर पर हमने स्टिल वाटर में एक रुकी हुई वाटर में जो वाटर मोशन में ना हो उसमें हमने एक पेबल थ्रो किया, एक स्टोन को इसमें थ्रो किया, फिर इस तरह सर्कुलर वेव्स जनरेट हो रहे हैं. जहाँ पर हम पेबल को या किसी पत्थर को थ्रो करते हैं इस तरह सर्कुलर वेव जनरेट हो रहे हैं. सो ऑल दीज आर व्हाट? This is first wavefront, second wavefront, third wavefront, fourth wavefront. Remember wavefront को समझना बहुत ही important है क्योंकि फिर wavefront के आगे अगर हम wavefront समझते तो फिर डायग्राम प्रिंसिपल हमें समझ आ रही. तो ये हमारे पास वाटर में क्या बनते हैं wavefront. अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे सपोज इस पॉइंट पे तो इसमें जितने भी पॉइंट है सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन पे है सोर्स से. मीन जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी इसकी फेज सेम होगी, सेम वाइब्रेशन होगी. सिमिलरली इस पर भी सारे पॉइंट जो है ना सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन पे है. तो ये हमारे पास स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होते हैं. वेवफ्रंट के भी टाइप से प्लेन वेवफ्रंट एंड स्फेरिकल वेवफ्रंट, तो उस पे भी हम आते हैं. सिमिलरली अगर हम लाइट की बात करते हैं तो हमने वाटर में वेवफ्रंट जनरेट किए. लाइट से सपोज दिस इज सन. Let me draw it here correctly. अगर ये हमारे पास सूरज है सन से सपोज तो इससे हर एक डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है इस तरह. सिमिलरली इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो मैंने मार्कअप नहीं किया तो इसका मतलब कि सन से हर डायरेक्शन में लाइट इमिट होती जा रही. अब हम देख रहे हैं सपोज हमारे पास एक क्रस्ट है. यहाँ पर भी एक क्रस्ट देख ले, यहाँ पर भी एक क्रस्ट देख ले, यहाँ पर भी एक क्रस्ट देख ले. ये 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं और इसको हमने इस तरह
ज्वाइंट किया। तो सन के इर्द गिर्द हमारे पास ये एक वेव फ्रंट बना। सिमिलरली अगर यहाँ पर करीबी हम बनाए तो ये क्रस्ट करीबी आ रहे, अगर इस क्रस्ट पे हम बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास और पॉइंट आ रहे। इस तरह हमारे पास अब ये जो है ना सन के इर्द गिर्द हमारे पास ये वेव फ्रंट बनते हैं और ये भी स्फीरिकल है। These are also spherical wave front। इसमें जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं ये सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन मीन सेम क्रस्ट है, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे भी है और क्रस्ट भी सेम है, तो ये सारे हमारे पास बहुत सारे स्फीरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। अब मजे की बात ये है कि वी रिसीव लाइट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। जो सूरज की लाइट है वी रिसीव सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारे जमीन तक जब पहुंचती है तो इसकी स्फीरिकल की बजाय प्लेन वेव फ्रंट होती है। कैसे? से सपोज दिस इज अर्थ। अब जब सन से अर्थ तक लाइट आती है तो ये क्या और स्प्रेड होती जा रही है और इसकी वेव फ्रंट बढ़ रही है आगे। इस तरह इसकी वेव फ्रंट ऐसे, तो जितना हम आगे जा रहे हैं इसकी वेव फ्रंट स्प्रेड होती जा रही है। अब जमीन तक पहुंचने में अर्थ सिर्फ इतना पार्ट से सपोज यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना पार्ट जो है ना इसी वेव फ्रंट की अर्थ पे गिरती है। तो अर्थ जो वेव फ्रंट रिसीव कर रही है वो तकरीबन ऑलमोस्ट क्या होती है? प्लेन वेव फ्रंट होती है। इस तरह अर्थ ये वाला पार्ट रिसीव करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये तकरीबन प्लेन वेव फ्रंट है। सो अर्थ रिसीव्ड दिस प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट को हम इसी तरह टू एरो के अंदर इंक्लोज करते हैं। ये जो दो एरोज है दीज आर कॉल्ड रेज ऑफ लाइट। यहाँ पर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। These are called what? Rays of light. What is the function of rays of light? It indicates the direction of propagation of light waves. So these are called what? Rays of light. Rays of light. Rays of light indicate the direction of propagation of light waves. And these are always perpendicular to the wave light waves. ठीक है ना? तो अब हमने क्या है? एक स्फीरिकल वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा, एक प्लेन वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा और रेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। तो इसको लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस वेव फ्रंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्फीरिकल वेव फ्रंट? स्फीरिकल वेव फ्रंट हमारे पास बिल्कुल सोर्स के करीब ही बनती है। तो जो सोर्स के करीब बने दैट इज कॉल्ड स्फीरिकल वेव फ्रंट। So types of wave front में हम पढ़ रहे हैं spherical wave front, ये स्टूडेंट इसके बारे में दो बातें अपने याद करनी है। ये जो है ना एक हमारे पास वेव फ्रंट नियर द सोर्स, वेव फ्रंट नियर द सोर्स इज नोन एज स्फीरिकल वेव फ्रंट। जिस तरह भी मैंने बनाया कि लाइट की इस तरह वेव फ्रंट बनती है सूरज के इर्द गिर्द, तो ये जितना हम दूर जा रहे हैं तकरीबन फिर कन्वर्ट होती जा रही है प्लेन वेव फ्रंट में। लेकिन नियर द सोर्स दैट इज स्फीरिकल वेव फ्रंट। और जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इसी स्फीरिकल वेव फ्रंट के पार्ट है। Part of spherical wave front. अब plane wave front क्या है? What is plane wave front? Wave front far from light source. Second type is plane wave front. Plane wave front is wave front
front far from light source. View front far from light source is the plane view front. If light source is placed at the principal of focus of convex lens, then plane view front are generated. तो प्लेन व्यू फ्रंट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? यहाँ पर how to generate plane view front? Say suppose we have a convex lens like this, और यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है ना? तो इससे लाइट आ रही है ऐसे और ऐसे। अब जो लाइट स्ट्रेट पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ये जो है ना इससे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, और ये भी पैरेलल। तो ये हमारे पास जो व्यू फ्रंट बनाएगी दैट विल बी अ प्लेन व्यू फ्रंट। सो हाउ प्लेन व्यू फ्रंट आर जनरेटेड? When a source of light is placed in the principal focus of convex lens, then the plane wave front are generated. क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर लाइट जाएगी और पैरेलल लाइन के अंदर जो लाइट जाएगी वो इस तरह, और ये लाइन, these line are called what? Rays of light. Rays of light indicate the direction of propagation of light wave और the direction of traveling of light wave. तो ये सारा वेव फ्रंट के बारे में था। अब हाइगन प्रिंसिपल पे हम आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइगन प्रिंसिपल? हाइगन प्रिंसिपल इसी वेव फ्रंट को आगे लेके जाएंगे हम और हाइगन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे।